A very good afternoon to everyone. So today I'm again come with a new topic that is called techniques of controlling. So students, as we discuss what is the process of controlling, importance of controlling, and the relationship between planning and controlling, and except this we discuss a lot of things about controlling function of management. But most important thing is that how this function is worked, how this function is worked. Controlling is a function, but according to controlling there are so many techniques are available uh, for controlling the organization or controlling the our management system. So this techniques is not you cannot we cannot say that this is a new means system. From ancient time there are so many um, managers, or there are so many people which are used to manage their organization or business by themselves. So these are called traditional technique, which are come from very past time. And in this modern era, the introduce of computer, internet, and many more softwares, we include some new techniques which are come under modern techniques of controlling. So traditional technique is we can say that traditionally when there is no use of computer, there is no use of any kind of internet, we can easily control our organization or our system. So first we'll start with the discussion of our traditional techniques of controlling. So let's start with the traditional technique of controlling. So you have seen here that traditional techniques are those techniques which have been used by companies for a long time, and now are traditional technique means, and these techniques are used from very past, from very long time by companies, and these techniques are called traditional techniques. Okay, so traditional techniques again divided into some types, which we need to discuss in this topic. So we'll discuss one by one our traditional techniques which are used by our managers from their very past. So we start with the number one, that is called personal observation. Personal observation, and nouns, this name suggests personal observation means what? A supervisor look after his workers. That is also personal observation. Okay, a manager look after his workers. That is also supervision. So it is called, a person is always means look over another some persons. In easy sense, you can say that a senior is look after his juniors. It is called personal observation. Like when you are in classroom, we are personally observing you. Okay, who is doing what when class is not going on, and that time we need to observe all of you, that everything is going in a proper rules and regulation or not. That is called personal observation. This traditional technique. Okay, in new technique we can use our suppose some cameras. We can install some hidden cameras. Again, we are using some new systems by which you can controlling. But we used to control all of you by using this traditional method, that is called personal observation. So like us, the company is also using some techniques by which they personally observe their workers. So this is called personal observation. I think it's very easy. It is applicable in any kind of job, any kind of organization, or any kind of management. So after this we move towards the number two type of traditional technique of management, that is called statistical report. Students, I think from your school, in mathematics subject you have got about you heard about, means you already have done about some graphs, you made some tables, chart. Again, in our economics and mathematics subject, I think these things are available. So in economics also one part is there, that is called statistical part. So I think you all know about ratio analysis, again correlation coefficient, but again you also need to calculate averages, percentages. Again, use something we need some maths or some topics you need to present in charts, graphs, or by making different kind of tables. So
these are called statistical presentation of the एक्टिविटी और ऑफ द परफॉर्मेंस। जो भी हुआ है उसके बारे में स्टेटिस्टिकली हम लोग उसको मतलब प्रेजेंट करते हैं। सो ये भी एक तरीका है। दिस इज़ ऑल्सो वे बाई विच यू कैन ईजीली कंट्रोल आवर वर्कर्स बाय मेकिंग देयर चार्ट, ग्राफ्स एंड टेबल्स। जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अगर हम डाटा कलेक्ट करके उसको ग्राफ में या चार्ट में ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद हम जब मेज़र करेंगे एक्चुअल के साथ, जैसे कि कंट्रोलिंग करता है, तो मेज़र करने के बाद हमको कंपेयर करने के बाद मिल जाएगा कि जो तुम कर रहे हो मतलब परफेक्ट है या फिर ख़राब है, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है तुमको पता चल जाएगा। तो तुमने जो बेंचमार्क सेट किया था वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकालने से भी हमको पता चल जाता है। तो ये भी एक टेक्निकल ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कंट्रोलिंग है, जो बहुत पहले से हर मैनेजर लोग अप्लाई करता आ रहा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट पहले से आदमी लोग अपना कंट्रोलिंग करने में यूज़ करते आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, it's a very easy one. Next we are moving towards our another topic, that is called break even analysis. Okay, ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी एक ग्राफिकल टाइप सी प्रेजेंटेशन है। इन दिस ब्रेक इवन एनालिसिस मेन थिंग इज़ दैट, मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। सपोज़ मैंने दो कर्व लिया है, ठीक है, तो दो कर्व में से दोनों कर्व जिस पॉइंट में जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या फिर जिस पॉइंट में दोनों का मतलब जॉइन होगा, तो वो पॉइंट जो है उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो गेन नो लॉस। सो नो प्रॉफिट नो लॉस जो बोला है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलते हैं, जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट किया है उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर उससे नीचे चला गया, इस पॉइंट के नीचे चला गया तो हो गया लॉस, और इसका ऊपर चला गया तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, इन तीनों का रिलेशनशिप भी हमको पता चल जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये बात जो मैं बोला हूँ तुमको, अगला मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो। तो इस पिक्चर से तुमको पता चल जाएगा कि कैसे ये ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। तो ये जो ग्राफ है मैं तुम लोगों ने देखा है, ये जो पॉइंट है BEP लिखा हुआ है, 400 दिया हुआ है, उस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया है, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसका नीचे आया तो लॉस, ऊपर गया तो प्रॉफिट। इसमें देखा है इसमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है, जैसे कि हो गया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इसके बाद यूनिट सोल्ड, इस सारा फिगर तुम डाल के इसको आराम से निकाल सकते हैं। और इसका एक फार्मूला भी इधर दिया गया है, नेक्स्ट जो इमेज इधर दिखा दे रहा है, ब्रेक इवन यूनिट्स फार्मूला। तो इस फार्मूला में तुमको ऊपर में जैसे कि फिक्स कॉस्ट उसको डालना है और उसको डिवाइड करना है फ्रॉम सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, और उससे डिवाइड कर दो फिक्स कॉस्ट को। जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उससे तुमको पता चल जाएगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, अंडरस्टूड। तो एक वेरी इजी फार्मूला है, तुम लोग प्रैक्टिकली घर में भी करके देख सकता है। और अगर रिज़ल्ट कुछ अकॉर्डिंग टू योर मीन्स आइडिया, अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मतलब ठीक नहीं आया है, हमको लगता है कि गलत आया, तो तुम मेरे से कंसल्ट कर सकता है कि अगर कोई गलती हुआ है तो मैं उसको मतलब ठीक करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अगर ये तुम लोग समझ गया, वही इजी है, तुम लोग लिखने से ज़्यादा इसको फॉलो करना, इस ग्राफ को अगर फॉलो करोगे तो लिखने जो यहाँ पे थ्योरिकली जो एक्सप्लेन किया है ये अच्छा से तुमको समझ में आ जाएगा, अगर दोनों को तुम कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं चलता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल मीन्स व्हाट, जैसे कि हम लोग एक बजट प्रिपेयर करते हैं। आई टोल्ड यू दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स होता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स में से वन टाइप होता है बजट। सो इस बजट को हमको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। सो जब बजट को हम कंट्रोल करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। वी नीड टू कंट्रोल आवर बजट, दैट इज़ कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। So it's also a one kind of technique by which we can controlling our organization. देखो, हर काम करने के लिए एक बजट होता है कि इतना पैसा में मुझे काम टू कंप्लीट करना है। सपोज़ तुमने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा बजट है सपोज़ 20 लाख रुपीज़। तो जब बजट तुमने 20 लाख रुपीज़ किया, तो कहाँ पे कितना खर्चा होगा इसका भी तुमने एक फिगर बना लिया कि इस जगह में इतना, इस जगह में इतना, इस जगह में इतना, तो टोटल तुमको 20 लाख में काम कंप्लीट करना है। बट
ये तो तुम्हारा सेटिंग बजट, बट जब काम कर रहा था उसके बाद देख रहा है कि नहीं 20 लाख का ज़्यादा लग जा रहा है, अल्टीमेटली डेफिनेटली तुम्हारा जो बजट है वो क्रॉस कर गया। तो क्रॉस कर गया मीन्स व्हाट, तुम्हारा जो बजटिंग था या फिर तुम्हारा जो प्लानिंग था बजट को लेके वो मतलब आई थिंक ठीक नहीं है, या फिर जो बजट किया था बजट के हिसाब से काम जो हो रहा है वो काम का सिस्टम या मेथड जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो तुमको कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। तो बजट प्रिपेयर करने से एट लास्ट क्वान्टिटी स्टेटमेंट में हमको पता चल जाता है कि तुमने जो काम कर रहे हो वो परफेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो कहाँ पे लग रहा है और क्यों लग रहा है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। तो इस बजट से हम टाइम, क्वांटिटी एंड मीन्स कॉस्ट तीनों का मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट जो है अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ये सारा था तुम्हारा ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, जो पहले से ही मतलब विदाउट कंप्यूटर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक तो तुम लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग खुद ही मॉडर्न हो। सो अल्टीमेटली मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स द न्यू टेक्निक्स विच इज़ used by all the managers in today's management or today's organization by using different kind of electronic devices or some techniques, electronic techniques. So नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला यूज़ करता है वो लोग, कंप्यूटर में भी तुम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फार्मूला तुमको दिख रहा है कि हम लोग एक मनी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद कितना हमारे पास रिटर्न आया है। तो रिटर्न आने के बाद वो प्रॉफिट है या लॉस है ये हमको पता चल जाता है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे लिखा है ROI इक्वल टू नेट इनकम कितना हुआ है उसको सेल से डिवाइड करो, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था उसको टोटल इन्वेस्टमेंट सेल्स को डिवाइड करो। तो मतलब इधर सेल्स को नेट इनकम से और सेल्स से नेट इनकम को, और इधर में टोटल इन्वेस्टमेंट से सेल्स को करना है। अब दोनों जो करोगे जो निकल के आएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि यह लॉस है या प्रॉफिट है। तो तुम अपना हिसाब से उसमें फिगर एक मैट्स बना के उसको फिगर डाल सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम लूँगा तो इस ROI का ऊपर ही एक कैलकुलेशन दे दूँगा, तो तुमको करके दिखाना है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि कितना इफ़ेक्टिव हुआ है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इट्स अ मॉडर्न टेक्निक। एक्चुअली ये टॉप मैनेजमेंट लोग ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्योंकि वही लोग जो है हमारा कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में काम अच्छा हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए जो हर डिपार्टमेंट में हम अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो मतलब उसका काम अच्छा हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है तो काम भी उतना ठीक नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमको पता चलता है कि परफॉर्मेंस इज़ गुड और बैड। So this is the number 1 modern technique we are using in this modern time for controlling function. Second one called ratio analysis. रेशियो तुम लोगों को पता है कि कुछ चीज़ों का हम लोग दो चीज़ों का मतलब रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कि 2:1